हरियाणा सरकार के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर पास किया है, जिसमें उन्होंने हरियाणा राज्य को ये निर्देश दिया है कि वो अपने स्कूलों के अंदर जो बुनियादी कमियां हैं उनको तेज़ी से जो है उनको ठीक करे। ये ऑर्डर अगर यूनाइटेड किंगडम में होता या अमेरिका में होता या किसी और देश में होता तो उसके जो प्राइम मिनिस्टर है उसने रेजिग्नेशन दे दिया होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर जो सरकारें हैं वो इतनी निकम्मी और बेशर्म हैं कि कोर्ट्स के ऑर्डर्स के बाद भी उनमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आता है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास एक ही उम्मीद है, वो है उन अभिभावकों से जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं और सरकारी स्कूलों में उनको दुनिया भर की कमियां सहन करनी पड़ती है। कहीं टीचर नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, खतरनाक बिल्डिंगों में बैठे हुए हैं और जो दूसरी किताबें वगैरह भी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी गुम है। तो पहले तो मैं आपको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो आज ऑर्डर पास किया उसको पढ़ के सुनाता हूं मैं। और वो ऑर्डर इस तरीके से है कि स्टेटस रिपोर्ट फाइल्ड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन ऑन 15/11/2019 which indicates that the authorities have taken steps to mitigate the problems being faced and removing the deficiency in the infrastructure facility in the buildings of the 8 government schools. The petitioner has now filed a CM 3 of 2022 along with annexures A1 to A4, which are certain representations made by the petitioner bringing in the notice of the authorities with the pathetic conditions of certain other government schools. Learned additional Advocate General appearing for the state of Haryana submits that the state of Haryana is committed to providing necessary facilities for education, and in case deficiencies are brought to its notice or comes to its notice, it will take all the necessary steps to ensure that the necessary building and facilities are provided in accordance with law. He therefore submits that the authorities should immediately look into annexures A1 to A4 filed by the petitioner along with CM 3 of 2022 and take the necessary steps in that regard. In view of that aforesaid statement made by the Additional Advocate General before this court and taking in consideration the status report that had been filed by the respondent on 15 January 2019 in respect of 8 buildings mentioned in the present PIL, we find no further reason to keep the present petition pending. The petition is disposed of in terms of the statement made by the learned Additional Advocate General appearing for the state of Haryana, wherein he has stated that the authorities will immediately look into the representations made by the petitioner and take the necessary action as expeditiously as possible in accordance with law. On request of the petitioner, it is further observed that in case certain other information is required to be produced or placed by the petitioner before the authorities in respect of certain other schools, then the petitioner gets liberty to do so as undertaken by the learned Additional Advocate General State of Haryana. Authority of the State of Haryana will look into the same immediately. These are the orders passed. और हिंदी में इसको अगर हम कहेंगे तो इसमें यही है कि जो हमने अपने रिप्रेजेंटेशंस में
हरियाणा सरकार को बताया कि हमने जो है 31 अगस्त 2019 से लेकर 22 दिसंबर 2021 तक लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हरियाणा के 55 से भी ज़्यादा स्कूलों को हमने देखा है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको मैं बता सकता हूँ कौन से हैं। ये फरीदाबाद है और आपका फरीदाबाद है, पलवल है, गुड़गांव है, नूंह है, सिरसा है, करनाल है, सोनीपत है और पानीपत है। ये अभी तक हम 8 देख पाए और इरादा तो हमारा यही था कि हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर स्कूलों को देखा जाए, लेकिन कोविड की वजह से होने वाले छुट्टियों में स्कूल की वजह से हम उसको पूरा नहीं देख पाए। लेकिन जितना भी देखा है वो सीन खुद में जो है एक सैंपल है और खुद में एक बहुत ही निराशाजनक पिक्चर देता है राज्य सरकार की, कि जहाँ पे आप बेसिक जो चीज़ें बच्चों को एक एजुकेशनल एटमॉस्फेयर के लिए चाहिए वो आप नहीं दे पाए हैं। तो यहाँ हाई कोर्ट की जो एक तरीके से लताड़ है इनको, मुझे उम्मीद है कि इसका कोई असर होगा। एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अभी हमने एक कैंपेन शुरू किया है पूरे देश के अंदर कि जो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं और वहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं उनको लेकर वो अपने घर के जो नज़दीक में तहसील की अदालत है उसके अंदर सूट फॉर इंजंक्शन, दीवानी दावा एक डालें इंजंक्शन का, सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन, जिसका मतलब ये है कि अदालत जो है वो राज्य सरकार को निर्देश दे कि फलानी चीज़ वहाँ पर कम है उसको पूरा किया जाए। सपोज करो डेंजरस बिल्डिंग में बैठ रहे हैं तो कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकती है कि ये डेंजरस बिल्डिंग को तोड़ के आप नई बिल्डिंग बनाइए और बच्चों को सेफ एंड सिक्योरिटी दीजिए। एक ये केस हो सकता है। अभी जो एक पहला केस देश के अंदर डाला है नूंह तिरखा तहसील के अंदर कि 130 बच्चे हैं स्कूल के अंदर, 6वीं से 8वीं तक लड़कियां हैं और एक ही टीचर है, जबकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर कम से कम 5 टीचर होने चाहिए। तो उसकी आज भी सुनवाई थी, अब उसकी तो सुनवाई 1 फरवरी के लिए चली गई है। लेकिन ये एक ऐसा सैंपल है, मुझे लगता है कि देश में जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं उनको ये फॉलो करना पड़ेगा, इसके बगैर होगा नहीं। मैं आपको एक चीज़ बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, या कोई 8-10 करोड़ बच्चे, आज 8-10 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं और उनके पेरेंट्स के लिए भी सिर्फ एक सरकारी स्कूल ही उम्मीद है। मुझे लगता है कि सब लोगों को समझना चाहिए कि आपकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। और आप बहुत ज़्यादा मतलब ये मत सोचिए कि हाई कोर्ट ने हमारे केस में ऑर्डर कर दिया है तो सिचुएशन बदल जाएगी। सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ तब बदलेगी जब एक एक पेरेंट जो है नज़दीक की सिविल अदालत के अंदर जो है केस करेगा और ये कहेगा कि मेरा बच्चा फलाने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ का टॉयलेट ब्लॉक जो है वो खराब है, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, डेस्क नहीं है, पंखे नहीं है, जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, टीचर नहीं है। तो इस तरीके की जब चीज़ें आप उठाएंगे ना, केवल तभी यहाँ पर कुछ होने वाला है। अदरवाइज आप ये उम्मीद करेंगे कि आपके जो नेता लोग हैं या आपके ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं या जो वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं वो आपके लिए लड़ेंगे। कोई नहीं लड़ेगा, आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं स्पष्ट शब्दों में दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि जो अभिभावक अपने बच्चों को हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में सरकारी स्कूलों में भेजते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं नहीं है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू एजुकेशन, स्टेचुटरी राइट, इसका मीनिंग क्या है? तो ऐसे पेरेंट्स जो है ना वो सब लड़ने को आएंगे तभी कुछ होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि इस हरियाणा के ये ऑर्डर भी व्यर्थ नहीं जाएगा, इससे सरकार हरकत में आएगी। लेकिन हम उन चीज़ों पे ज़्यादा आधारित नहीं रह सकते। हमारी लड़ाई वो होगी जो एक एक पेरेंट अपनी लड़ाई, अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ेगा। थैंक यू।